Hello, I am Mitali Rilawala, your biology teacher. As I have already completed our chapter number 1, and that is the reproduction in organism. Today we are starting new chapter, that is chapter number 2, reproduction in flowering plant. Flowering plant, that is the angiosperm, and you know well that for reproduction in flowering plant it is necessary to study about the flower as it has both male and female reproductive organ. Okay, then we have already learned about the lifespan, and the lifespan is classified in three stages, that is the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization stages. So here we are discussing it in more detail, and one of the important topic, that is the apomixis and polyembryony, which is also discussing in this chapter number. Okay, here the introduction, in which you can see the flower is the most important part. Why it is most important? Because I already told you that male and female reproductive organ is present in the flower, and which is important for sexual reproduction. Okay, the next point is diversity. We are observing in inflorescence, flower and flowering part. You can see the inflorescence here, how many different type of inflorescence you can observe. Okay, inflorescence, that means the arrangement of the flowers or flowering part. Okay, and why this much diversity is required? Because to ensure the formation of end product of sexual reproduction. And what is the end product of sexual reproduction? That is the fruit and seed. Okay, अगर हमें रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है, देन इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड हाउ दैट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स place. Okay, and one more point is that human are always coordinated with the flower, as it has a aesthetical value, social, ornamental, commercial, religious and cultural value. And one more thing, we are using flowers to express our feelings like love, attention, greeting and happiness. As you can see, when we are greeting someone, we give them a flower. If we want to propose someone, we can give them a flower. So it is used to express our feeling. Okay, so topic 2.1, that is the flower, a fascinating organ of angiosperm. Angiosperm, as I have already told. So the flower is actually made up of four main parts, that is the sepal, petal, stamen and pistil. Sepal is for protection. The outer green color portion is the sepal, and it is for protection when flower is in bud form. Okay, the second one is petal is the very colorful part of the flower, and it is because it has to attract insects for pollination. And third portion is the stamen and pistil are the most important portion, as stamen is the male reproductive part and it is also known as androecium. It has a filament and anther contain the pollen grains. And the pistil and carpel, which is the female reproductive part and also known as the gynoecium, it has a stigma style ovary which has ovules. Here you can see in the figure, the green portion here is the sepal, the pink portion is the petal. Here you can see the stamen, in which the filament and anther you can see, and the center portion here, the upper portion is stigma, the long slender portion is style, and the ovary has the ovules. When pollen grain land on the stigma, it germinate and it form a pollen tube, through which the male gametes is transferred to the female gametes. Now one more terminology, that is the receptacle is also known as the thallus, and it is the connecting part of all floral part. And one more is the pedicle is the in between portion between the flower and the main part of the plant. So it here you can see connecting structure between the single flower to other part of plant. Okay, so here you can see that there is one flower and there is the main stem. The in between portion between the, two of them is known as the pedicle. Okay, now the next topic is 2.2, that is the pre-fertilization structures and event. Okay, so
यू नो कि अगर हमने कोई प्लांट को ग्रो किया है तो वो तुरंत से फ्लावर देना स्टार्ट नहीं कर देगा, उसको एक सर्टेन स्टेज सर्टेन टाइम ड्यूरेशन चाहिए, उसके बाद वो फ्लावर ग्रो करना स्टार्ट करते। तो वो टाइम ड्यूरेशन क्यों चाहिए? Because there is a structural and hormonal changes will take place, and that structural and hormonal changes will do a cell differentiation and it form floral primordium, and from floral primordium inflorescence form, floral bud form, and finally the flower, that is our main portion, it will form. And in flower the androecium and gynoecium are differentiated and developed. So here we are studying about the stamen, microsporangium and pollen grain. So as we have already learned that stamen has two portions, that is the filament and anther. Stamen has two portions, that is filament and anther. Filament, which is long, slender, stalk-like structure, and anther, which is the terminate lobed, bilobed structure. Here you can see the long filament and upper bilobed structure, that is the terminal bilobed structure. If this is a terminal, then this one is the proximal. So the proximal end of the stamen attached to either pedicle or thallus or of petal. Okay, now the main point is size, number and length of the stamen is also variable. Size, that means maybe it is large in size, small in size. Number, that means in some there is 1 in number, 2 in number, 3 in number, and more than. And length of the stamen, small stamen, long stamen, etc., all are variable. The next thing is anther in transverse section. Here you can see the transverse section of anther, which is bilobed. You can see here one lobed and two lobed, that is why we are calling him bilobed. So in this transverse section, this one section and this one, which is the bilobed, then each lobed have two thoka. That means समझ लो कि ये एक लॉब्ड है और एक लॉब में ये आउटर राउंड पोर्शन एंड आउटर राउंड पोर्शन, दैट मीन्स टू थेका, एंड जो दो थेका है वो थेका एक ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जैसा बना है, उससे वो सेपरेट हो रहे हैं। तो एक लॉब में टू, दूसरे लॉब में टू, टोटल 4 थेकास आर देयर। ओके, अभी वो जो 4 ठेका है ना, उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, तो 4 साइडेड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं टेट्रागोनल। और उसमें ये जो ऑरेंज कलर दिया हुआ है तो वो जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है। ओके, इन विच 2 इन ईच लॉब्ड, मतलब ये एक लॉब्ड है, एक लॉब में 2 थेका है और 2 थेका में 1 माइक्रोस्पोरेंजियम है। और माइक्रोस्पोरेंजियम में ये जो ऑरेंज कलर के दिए हैं, दैट इज़ द पोलन स्पेक, एंड वो जो पूरे लॉन्गिट्यूडनली ग्रो होते हैं। तो पोलन सैक्स डेवलप लॉन्गिट्यूडनली एंड दैट पोलन सैक्स हैविंग पोलन ग्रेन, विच इज़ अवर मेल गैमेट्स. Okay, here the structure of microsporangium. Microsporangium that is present in that theca. Okay, so microsporangium is located near circular outline. Circular outline, that means समझ लो कि ये ट्रांसफर सेक्शन है एंड ये आउटर सर्कुलर लाइन है। तो ये चारों कॉर्नर पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा एंड इट इज़ कवर्ड बाय 4 लेयर. हियर यू कैन सी द आउटर मोस्ट एंड एपिडर्मिस, then endodermis, then middle layer, and then tapetum. You can see here also. Okay, here outer 3 walls for protection and for dehiscence to release pollens. Dehiscence to release pollens. Dehiscence, that means there is the one portion from where the opening is occur, and from that opening the pollen are released. So here it is dehiscence to release. Okay, outer 3, that means the epidermis, endodermis, and the middle layer, they are for protection. And the inner wall, that is the tapetum. Tapetum has a dense cytoplasm. Here you can see the dense cytoplasm, and that dense cytoplasm have nourishment capacity of
for developing pollen grains. Okay, one more important thing is the sporangineous tissue, the middle tissue. Sporangineous tissue is also known as the microspore mother cells. Okay, so the middle sporangineous tissue is the group of compactly arranged homogeneous cell. homogeneous मतलब एक दूसरे से सेम है, वैसे कॉम्पैक्टली अरेंज है, और वो लोकेट करते हैं कहाँ पे, तो ये जो स्पोरेंजियम दिखा है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके मिडल में, सबसे मिडल में स्पोरेंजिनियस टिश्यूज लोकेट करते हैं. ओके, now one of the most important topic, that is the microsporogenesis. What is microsporogenesis? That is the sporangineous cells, which is 2n sporangineous cells, which is also known as the pollen or microspore mother cells, which is diploid in nature and form microspore, that is the haploid in nature. अभी 2n में से n है, that means reductional division, which is meiosis. Meiosis will occur and form microspores, and that microspores arranged in group of 4, and it is known as the microspore tetrads. As you can see in the figure, there is the one microsporocyte. Microsporocyte is also known as the sporangineous cells, which is 2n. Then meiosis 1 and meiosis 2 occur and form 4 haploid nuclei, which is microspores, and that microspores are grouping themselves in 4 and forming the microspore tetrads. Okay, एज एंटर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, मतलब कि ये जब जो ग्रुप बना है वो जब मैच्योर होके जब डिहाइड्रेट, वाटर कंटेंट कम होता जाएगा, देन ये जो 4 ग्रुप है वो सेपरेट होता जाएगा और एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे और सेपरेट पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे, एंड देन रिलीज फ्रॉम डेहिसेंस ऑफ एंटर, मतलब कि वो जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ से वो रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे. Okay, so here you have seen some informative portion like pollen grains. आपने भी कई बार सुना होगा कि किसी को पोलन से एलर्जीज हो सकती है. So here you can see that pollen grains cause severe allergies, bronchial infections, chronic respiratory disorders, and it is like chronic respiratory disorder, and that disorder are asthma, bronchitis. Okay, so pollen grain can cause this. Then one of the important note is when वीट, जब वीट है ना वो इम्पोर्टेड हुए थे तो उसके साथ कैरेट ग्रास और पार्थेनियम जो है वो भी आए थे और उसकी वजह से एलर्जी कोज हुई थी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्थेनियम और कैरेट ग्रास. नाउ पोलन ग्रेन्स, अभी पोलन ग्रेन से वो मेल गैमेटोफाइट है तो उसको नरिशमेंट चाहिए होगा, तो उसके पास हाई न्यूट्रिएंट्स होता है और वो हाई न्यूट्रिएंट्स की वजह से उसको हम एज अ सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स. इन वेस्टर्न कंट्रीज पोलन प्रोडक्ट्स लाइक पोलन सिरप्स एंड पोलन टैबलेट्स आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज. अभी वो किसके लिए यूज़ होता है, तो एक्टिविटी ऑफ एथलेट्स एंड रेस हॉर्सेस, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम वो यूज़ करते हैं. वंस पोलन शेडिंग, एक बार पोलन एंथर में से शेड हो जाए उसके बाद वो सिग्मा पे जाती है फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. हियर द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वायबिलिटी ऑफ पोलन. दैट मीन्स कि वो एक बार एंथर में से डेहिसेंस हो चुका है, ओके, उसके बाद वो कितने टाइम तक वायबल रह सकता है, दैट इज़ द वायबिलिटी ऑफ पोलन. सो वायबिलिटी इज़ ऑल्सो वेरिएबल, लाइक कोई फ्यू डेज तक रह सकता है या फिर कोई फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, वो वेरिएबल होता है. और सम टाइम इट इज़ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सीरियल क्रॉप लाइक राइस, उसकी वायबिलिटी 30 मिनट है. एक बार एंटर से डेहिसेंस हो गया उसके बाद वो 30 मिनट तक वायबल रह सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल इज मेंबर ऑफ रोसेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी. वायबिलिटी ऑफ पोलन इज फॉर फ्यू मंथ. यहाँ पे 30 मिनट्स है, यहाँ पे फ्यू मंथ्स है. यू कैन सी द वेरिएबिलिटी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पोलन. पोलन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि पोलन को हम पोलन बैंक में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे कि हम आर्टिफिशियल एनिमल्स या एनिमल्स की हाइब्रिड बनाने के लिए उसका सीमेन या स्पर्म स्टोर करके रखते हैं, ओके, वैसे ही हम पोलन बैंक्स होती है, जैसे सीड बैंक होती है वैसे पोलन बैंक होती है, उसमें पोलन को स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो यू कैन
You can see here the pollen grain. As I told you, pollen grain is a male gametophyte and it is variable shape, size and structure. In this figure you can see there are so many types of pollen grains you can see, and that are variable in shape, size and structure. Mainly they are spherical in shape and the diameter from 25 to 50 micrometer and two layered wall. Okay, here this is the mature pollen grain and you can see axine and intine. Axine is the outer wall and intine is the inner wall. So here axine is made up of the sporopollenin, and sporopollenin जो है वो हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर सकता है और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस को भी रेसिस्ट कर सकता है। एंड इवन कोई एंजाइम्स भी नहीं है कि जो ये स्पोरोपोलिनिन का ब्रेक डाउन कर सके। सो इट इज़ द हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल। और one of the important point is germ pore. Germ pore is also present on the external wall, but germ pore is कि जहाँ पे आपको स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलेगा। जैसे कि समझ लो ये स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे germ pore है, तो germ pore के पास डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मीन्स कि वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है। और जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वहाँ पे germ pore फॉर्मेशन होता है। वन मोर थिंग, मैंने आपको बोला था कि पोलन को हम स्टोर करके क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है स्टोर एज अ फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? ट्रेस ऑफ प्लांट्स, मतलब कि जो रेमिनेंट बोलते हैं, तो उसको फॉसिल की तरह स्टोर करके क्यों रख सकते हैं, क्योंकि वो स्पोरोपोलिनिन से बना है। और स्पोरोपोलिनिन जो है वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जो इजीली डिके नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम उसे स्टोर कर सकते हैं एज अ फॉसिल। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंटाइन, दैट इज द इनर वॉल, दैट इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर and it is made up of cellulose and pectin. Now next is cytoplasm. Cytoplasm, that means middle jelly like structure which is surrounded by a plasma membrane. Now most important thing is mature pollen grains, as you can see here, that is made up of two cells. One is vegetative cell and second one is generative cell. This whole cell is vegetative cell and this is the generative cell. This is the vegetative nucleus and this is the generative nucleus. Vegetative cell, which is irregular nuclear, bigger in size and highly food reserve. एक बार हमेशा याद रखना कि जब भी एम्ब्रियो की बात करें ना, तो एक चीज़ होती है जो उसको नरिश करती है और एक चीज़ होती है जिसमें से वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो है ना वो नरिशमेंट करेगी, और जनरेटिव सेल्स है जो स्मॉल एंड स्पिंडल शेप है। यू कैन सी स्मॉल है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस है, और डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो दैट इज़ द टू वॉल स्ट्रक्चर। जर्मिनेटिव सेल में से एम्ब्रियो फॉर्म होगा और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो उसको नरिशमेंट देगी। तो दैट इज़ टू सेल पोलन होता है। और मेनली प्लांट्स जो है उसमें टू सेल पोलन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, बट समटाइम्स that generative nucleus are divided mitotically, that means equational division, और उस टाइम पे ये दो सेल और ये तीसरा, तो ओवरऑल 3 सेल्ड पोलन बन जाती है। और 3 सेल पोलन भी कभी कभी रिलीज हो सकती। Okay, so here we have completed our male gamete. Now next point is pistil, megasporangium and embryo sac. Okay, pistil, that means female gametes. We are talking about the female reproductive organ. So gynoecium is classified in mainly two parts. One is single pistil, if it has a single pistil, which is known as the mono मतलब single, and carpelli, monocarpelli, and more than one pistil, that means multicarpelli. Multicarpelli is also divided in two portions, that is the syncarpellus. If pistil join with each other, that is the syncarpellus, or free from each other, that is the apocarpellus. Okay, now you know the structure of gynoecium, that is the stigma is landing platform for pollen grain. Style is a thin slender part located below stigma. Ovary is a basal bulge part. ओवेरियन कैविटी इज कॉल्ड लॉक्यूल, मतलब पूरी एक ओवरी है, पूरी एक ओवरी है, और ओवरी में जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अलावा जो खाली कैविटी रहती है, दैट इज द लॉक्यूल। लॉक्यूल में मिडल में प्लेसेंटा पास होता है।
ओके। और वो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में से मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल अराइज होता है। किसी में एक ओव्यूल्स होता है जिसके एग्जांपल वीट, पेडी और मैंगो, और किसी में मल्टीपल ओव्यूल्स पैदा प्रोड्यूस होता है, दैट इज द पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। Okay, here you can see first one is the typical structure of our gynoecium. In the second figure you can see the all जितनी भी पिस्टल्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ जॉइंट है। तो अगर जॉइंट है तो उसको फर्स्ट वन इस वो मल्टी कार्पेली है, और मल्टी कार्पेली के साथ साथ वो जॉइन है तो उसको क्या बोलेंगे, सिन कार्पेलस। यहाँ पे भी मल्टी कार्पेलस है बट उसके साथ साथ उसके जो ये कार्पेल्स है वो फ्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पेलस। एंड द लास्ट फिगर इज द एनाट्रोफस ओव्यूल्स। व्हाट इज द एनाट्रोफस? हियर आई एम गिविंग द डेफिनेशन। एनाट्रोफस ओव्यूल दैट मीन्स कंप्लीटली टर्न्ड बैक ओव्यूल। टर्न्ड बैक में आपको नॉर्मल ओव्यूल में ये जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे होगा, नीचे का पार्ट ऊपर होगा, बट यहाँ पे टोटल 180 डिग्री का टर्न है तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं एनाट्रोफस ओव्यूल्स। इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन स्टडी अबाउट this and the portion that you can see here, hilum, funicle, micropyral, you can see and learn in detail. Okay, so here megasporangium which is known as ovules. तो मैंने आपको वो बताई थी तो वो पूरी उल्टी थी और यहाँ पे 180 टर्न हो गया, तो ये अपनी नॉर्मल ओवरी है। नॉर्मल ओवरी से 180 टर्न वाली जो ओवरी होती है उसको बोलते हैं एनाट्रोफस ओव्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे फ्यूनिकल, दिस पोर्शन इज द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट जॉइन द ओव्यूल विथ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और ओव्यूल को जो जॉइन करता है वो है फ्यूनिकुलस। देन हिलम, हिलम जो है वो ये जो पोर्शन है फ्यूनिकल्स और ओव्यूल को जॉइन करने का जो पोर्शन है विच इज़ हिलम। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल और पॉइंट एट विच ओव्यूल फ्यूज विद द हिलम। ओके, नाउ इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स that means the outer wall, 1 or 2 outer walls are present, so it is the integument, and integument is always protective. Okay, there are two, and that is the micropyral and classal. And why we are calling them a micropyral and classal? And because here the okay, micropyle that means the one pore like structure जहाँ पे इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता। और माइक्रोपाइल क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि जब वो जर्मिनेट होगा एट दैट टाइम उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, तो उसकी एंट्री के लिए भी माइक्रोपाइल इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग कि जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो पोलन ट्यूब की एंट्री होने के लिए भी ये माइक्रोपाइल होना इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, द 180 degree other tip, okay, that is the classa. Okay, and that is the opposite tip of micropyle, basal part of the ovule. Now the nucellus, here the green portion you can see is the nucellus, and it is the reserve of food material. Okay, the most important portion is this one. This is the embryo sac or female gametophyte which is located in nucellus. Generally ovule has a कोई भी मेनली कोई भी होना तो उसमें एम्ब्रियो सेक या जो भी फीमेल गैमेटोफाइट है मेनली प्लांट्स में एक ही होता है। और ये जो एम्ब्रियो सेक है वो फॉर्म कैसे होता है? तो मेगास्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर का रिडक्शनल डिवीजन होके एम्ब्रियो सेक फॉर्म होता है। Okay, so here first let's see the figure. Here one megaspore mother cell, as we can see माइक्रोस्पोर मदर सेल था या पोलन मदर सेल्स था, तो उसमें भी मियोसिस होके 4 सेल बने थे और वो ग्रुप बना के टेट्राड्स बना रहे थे। यहाँ पे चेंज क्या होगा कि 4 जो सेल्स बने हैं उसमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे और वो एक जो बचेगा वो अपना फंक्शनल होगा, फंक्शनल मेगास्पोर होगा। वो जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसमें से पूरा एम्ब्रियो सैक बनेगा। सो हियर मेगास्पोरोजेनेसिस जो 2n है उसमें से मेगास्पोर फॉर्मेशन होगा विच इज एन सिंगल मदर सेल डिफरेंशिएट इन माइक्रोपाइरल रीजन ऑफ द न्यूक्सेलस विच इज लार्ज सेल देन साइटोप्लाज्म एंड डेफिनेट न्यूक्लियस।
4 मेगास्पोर है उसमें से 1 एक्टिव रहेगा, बाकी के 3 डीजनरेट हो जाएंगे। और जो 1 एक्टिव मेगास्पोर है विच विल फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और एक ही मेगास्पोर में से पूरा एम्ब्रियो सेक फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। याद रखना, एक ही स्पोर में से पूरा गैमेटोफाइट बन रहा है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। Okay, let's see the figure. First, 1 megaspore, 1 cell structure we can see in the last slide. Okay, वो जो एक सेल है उसका माइटोसिस होगा, माइटोसिस होके 2 सेल स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर दूसरी बार माइटोसिस होके 4 सेल स्ट्रक्चर बनेंगे, फिर तीसरी बार माइटोसिस होके 8 सेल स्ट्रक्चर बनेंगे। ओके, और ये जो है ना यहाँ पे एक लिखा है दैट ओके, माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर डेट मीन्स के माइटोसिस हमने पढ़ा है 11th में कि माइटोसिस होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा, बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। डेट मीन्स नो इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन। इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस डेफिनेटली होगा बट इमीडिएटली फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाने के बाद उसमें से 3 जो सेल है वो माइक्रोपायरल एंड तक जाएंगे, 3 जो सेल है वो 3 जो है वो क्लेजल एंड के पास जाएंगे। ओके, जो माइक्रोपायरल के पास जाएंगे उसमें से 2 होंगे सिनर्जिड सेल्स और 1 होगा एग। ओके, और जो क्लेजल एंड के तरफ जाएंगे वो होगा एंटीपोडल सेल्स, और बीच में 2 जो न्यूक्लियाई रह गए उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और बीच का जो पोर्शन है वो है सेंट्रल सेल। सो आफ्टर मैचुरेशन यू कैन सी हियर एट क्लेजल एंड, ये जो है उसका डायरेक्टली 180 टर्न है। ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा, दैट मीन्स क्लेजल एंड है, वहाँ पे 1 2 3 एंटीपोडल्स है, और यहाँ पे माइक्रोपायरल पे 2 सिनर्जिड है, और पीछे ये एग सेल है। जो बीच के 2 न्यूक्लियस है वो अपने पोलर न्यूक्लियाई है, और ये जो पूरा सेल है वो सेंट्रल सेल है। तो इसीलिए ये जो फॉर्म हुआ है उसको हम 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस है, बट सेल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7, इसीलिए उसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। सो लेट्स गो टू द information. Megaspore. Okay, megaspore form two nuclei that move to the opposite pole. Mitosis, 2 nuclei, embryo sac. That is this. 2 nucleated embryo sac, 4 nucleated and 8 nucleated. 2, 4 and 8 nucleated embryo sac. Mitosis division are strictly flunuclear, means no immediate cell wall formations. After 8 nucleated embryo sac, cell wall laid down and typical gametophyte is formed. इतना सेल डिवीजन हो जाने के बाद सेल वॉल फॉर्म होगी, और फिर अपना जो टिपिकल गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सेक है वो फॉर्म होगा। 6 न्यूक्लिया आर सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड फॉर्म सेल, जो मैंने आपको बताई ऊपर के 3 और नीचे के 3 वो सेल वॉल से, और 2 न्यूक्लियाई जो बीच में रह जाएंगे वो पोलर न्यूक्लियाई बनेगी, और जो पूरा सेल होगा वो सेंट्रल सेल होगा। नाउ माइक्रोपायरल एंड पे क्या होगा, 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे, जो स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट एंड इज फॉर्म द फिलीफॉर्म एपरेटर्स। यहाँ पे देखो ये जो 2 सिनर्जिड है ना, वो सिनर्जिड सेल के नीचे यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर और फिलीफॉर्म एपरेटर्स। और वो फिलीफॉर्म एपरेटर्स क्या करेगा कि जब भी पोलन ट्यूब आएगी ना, तो पोलन ट्यूब में से जो मेल गैमेटोफाइट्स है उसको डायरेक्ट करेगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। उसके ऊपर जो फॉर्मेशन होगा, ये जो पोर्शन है विच इज़ एग, ये जो है वो अपना सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस है, और ऊपर जो क्लेजल है वहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल है। तो यहाँ तक अपना जो फर्स्ट पोर्शन दैट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड उसमें जो मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ तक आपने सीख लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आप लोग सीखोगे कि एक्चुअली पोलिनेशन, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको पोलिनेशन की ज़रूरत है, तो पोलिनेशन कैसे होगा वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।